Assalamu alaikum class. This is our online first lecture, and this is also first lecture after sessional 1 because we haven't taken any class after sessional 1. So this is your first lecture of applied physics. In today's lecture, according to CDF, the topic after your S1 syllabus is potential difference. What is potential difference? Electric potential, how we can calculate potential for a point charge, and all things relevant to electric potential. So today we will discuss about electric potential difference. Okay, what is potential difference? Potential difference, I told you people what is potential. Potential means difference. What is difference? There must be two things in which we can differentiate. So its difference means there must be 2 points, there must be two places. Okay, let's say we have 2 points. In those points, one of the point has high potential and one of the point has low potential, and in the difference between those points, the sorry in and the difference between these 2 points is the potential difference. Okay, let's say if we have a charge. Okay, let me read first this so that you people can easily understand the figure. Potential difference is, so potential difference between 2 points is defined as the amount of work done per unit charge. Okay, amount of work done, this is work done per unit charge, this is unit charge q naught. Okay, this is potential difference, but what actually it is, this is actually the amount of work done in moving a point charge from one point to another point. This is called potential difference. ओके, मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से हम पे चार्ज रखा है क्यू नॉट, उस चार्ज को हमें पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है, और आपको पता है कि हम अगेंस्ट, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम उस चार्ज को मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स बी पॉइंट, ए से बी की तरफ उस पॉइंट को लेके जा रहे हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इस चार्ज को मूव कराने के लिए ए से बी की तरफ वर्क हैज़ बीन डन, वर्क विल बी डन. Okay, so this is the amount of work done in moving a point charge from one point to another point. This is called potential difference. Okay, potential difference between 2 points is defined as the amount of work done per unit charge in moving it. किसको मूव करने के लिए? चार्ज क्यू नॉट को. In moving it from one point to the other against the electric field. Against the electric field मतलब कि Q एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और उसी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस में हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं. डेफिनेटली ये इसको हम इस तरफ मूव करवा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरफ आउटवर्ड है ये इसको अपोज करेगी. सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को ए से बी की तरफ ले जाने में. So this is amount of work done in moving a point charge from point 1 to another point. Okay, now suppose a unit positive discharge q naught is moved from point A to the point B. ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि हम q नॉट चार्ज को A से B की तरफ ले जा रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E. इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी की प्रेजेंस में हमें चार्ज को मूव कराना है. ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है. ठीक है, और पॉइंट ए से क्यू नॉट चार्ज को उठाया, हम पॉइंट बी की तरफ ले जा रहे हैं और हमें वर्क करना पड़ा है. पॉइंट ए पॉइंट का उस चार्ज से जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ तक डिफरेंस आर ए है, और पॉइंट बी से उस फील्ड लाइंस तक आर बी है डिस्टेंस. ओके,
अब हमें क्या करना है, हमें देखना ये है कि वर्क हमारा इसमें क्या होगा। कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया कि ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या है, ये वर्क क्या होगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट, ये क्यू नॉट, इसको मूव करने के लिए जो वर्क किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इसको ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। सो डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी, वो वर्क डन जो हमने ए से बी की तरफ जाने के लिए किया है इज इक्वल टू, आपको पता है हम मैट्रिक में एफएससी में हमेशा पढ़ के आए हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। सो वी आर द, अब हम इंटेग्रल ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ इस जगह पे चार्ज को देख रहे हैं, किसी भी जगह हो सकता है। सो दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इंटेग्रल पॉइंट ए टू बी एफ डॉट डी आर, ओके। फोर्स इनटू डिस्टेंस डी आर, डिफरेंशियल लिया हमने उसका, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस फोर्स, जो फोर्स हम उसको लगा रहे हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो फोर्स क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसमें पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है और एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। यहाँ पे हमारा क्यू क्या है, क्यू नॉट, और ई है ई। माइनस क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इस डायरेक्शन में है, जबकि हम चार्ज को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। सो एज दिस चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट्स वाई दिस फोर्स इज माइनस क्यू नॉट ई, ओके। हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रही है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड मस्ट हैव टू सप्लाइड इन ऑर्डर टू मूव क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम माइनस क्यू नॉट ई इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे इस चार्ज पे, तो हमारा चार्ज ए से बी पॉइंट पे चला जाएगा और वर्क डन हो जाएगा। ये वो फोर्स है जो हमें लगानी है, ठीक है। डिस्टेंस वो डी आर, कोई सा भी आर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो क्या होगा, वर्क डन ए से बी तक का। उस वर्क डन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखें, हमने क्या किया है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इंटेग्रल ए टू बी एफ, यहाँ पे था एफ डॉट डी आर। फोर्स हमने देखी है अभी कि माइनस क्यू नॉट ई लिया है फोर्स को, चूंकि एफ इजिकल टू क्यू ई होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अगेंस्ट जा रहा है, दैट्स वाई दिस इज माइनस। सो क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्यू नॉट आपको पता है कॉन्स्टेंट है, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट हो गया, हम बाहर ले आते हैं इसको, माइनस क्यू नॉट को, अंदर बच गया ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, डिस्टेंस भी इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटेग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर। अगर हम इस क्यू नॉट को दूसरी साइड पे ले जाए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस, ये क्यू नॉट डब्ल्यू को डिवाइड करेगा। सो दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू माइनस इंटेग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर। अगर स्टूडेंट्स आप देखें, दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ना दिस वर्क डन बाय क्यू नॉट W over Q नॉट, अभी हमने शुरू में पढ़ा था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो दिस इज डेल्टा वी बिकॉज दिस इज चेंज इन पोटेंशियल। हमारे पास दो डिफरेंट पोटेंशियल हैं। सो वी बी माइनस वी ए, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो इस W बाय Q को हम क्या कहेंगे, दिस इज वी बी माइनस वी ए। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, B का पोटेंशियल, B पे पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू माइनस A टू B इंटेग्रल A टू B E डॉट डी आर, ठीक है। दिस इज द therefore the electric potential therefore the electrical potential difference between 2 points in an electric field will be this one. So this is the electrical potential
डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से हमारे ए और बी. ओके, सो क्लास दिस वाज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ वी कैलकुलेटेड इट. आपने देखा है कि हमने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज को क्यू नॉट को एक पॉइंट ए से बी तक लेके गए थे, और वो चूंकि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे थे तो हमें इसको वर्क करना पड़ा था उस चार्ज पे, उसको पे फोर्स लगाना पड़ी थी. वो फोर्स क्या थी? माइनस क्यू नॉट ई. नाउ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. अभी जो हमने पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, that was just electric potential. and what is potential difference था क्या? अभी हमने यही देखा था. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एब्सोलूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, अब आप डिफरेंस देखेंगे कि एब्सोलूट क्या था और जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या था. एब्सोलूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. अगर आप गौर करें, हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना है. ठीक है, तो चूंकि पोटेंशियल तो हमारा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है, हमेशा डिफरेंस आता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने एक से ज़्यादा पॉइंट लेना पड़ता है, दो पॉइंट लेते हैं. अब क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट. एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपना दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है जहाँ से हम चार्ज उठा के लेकर आएंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ absolute electrical potential at a point? Absolute electric potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge. ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई है पोटेंशियल डिफरेंस वाली ही. द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving it from infinity to a specific field point against the electric field. ठीक है, अब हम क्या करें? हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आ रहे हैं किसी और स्पेसिफिक पॉइंट पे, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क करवा रहे हैं हम उसको. लेकिन अब चूंकि हम एट अ पॉइंट कर रहे थे तो हमने दूसरा पॉइंट क्या एज्यूम किया? दैट द अदर पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी. सो आपको पता है इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, तो हम उस वर्क डन भी होगा, एक चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कराएंगे, लेकिन चूंकि एट अ पॉइंट है तो हमने अपना दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लिया कि हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट के पास लेकर आएंगे, और उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, सो टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल the reference point is selected at which potential is zero. वो रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया था? इन्फिनिटी, जहाँ पे आपका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा. दिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, दैट इज़ आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चूँकि हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को मूव करवा रहे हैं, लेकिन क्या है, हम इनफाइनाइट अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे से उस चार्ज को मूव करवा के ला रहे हैं, तो उस जगह तो वैसे ही उसका फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फील्ड इफेक्ट ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा. ठीक है, सो वी ए अब क्या है, हम चूँकि ए से बी की तरफ जाते हैं तो ए क्या है, हमने इन्फिनिटी पे ले लिया, उस जगह पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा. ठीक है, सो ये इक्वेशन जो हमने पिछले टॉपिक में अभी फाइंड आउट की थी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर. ठीक है, अब ए क्या किया है, हमने इनफाइनाइट पॉइंट ले लिया है, ए को हमने इन्फिनिटी पे ले लिया है, इन्फिनिटी से लेके बी तक, और ए का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी ए इज़ ज़ीरो, सो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर. अब क्या है हमारे पास? दिस इज ज़ीरो, सो वी बी. ओके, इसके बाद हम लिखें वी बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटेग्रल इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर. अब क्या है, चूंकि हमारे पास बी तो हम तब लिखे ना जब हमारे पास कोई ए पॉइंट भी हो. हमने ए क्या ही ये दिया है कि वो इन्फिनिटी से लाए हैं, तो हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं रहा. ठीक है, तो हम इसको जनरल क्या लिख देंगे? द वी एट आर, कोई सा भी आर डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल infinity to r e dot dr. So this is the absolute electrical potential at a point. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप जो पहले टॉपिक पढ़ा था हमने वो वाली डेरिवेशन करेंगे.
अगर कहा जाए कि आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करें एट अ पॉइंट, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कौन सा, जो एब्सोल्यूट है, ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी देखा, उसमें पॉइंट चार्ज भी था, लेकिन एक स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो लेट मी रीड दिस फर्स्ट, then I will tell you. The potential difference between 2 points is the amount of work done per unit charge in moving it from one point to the other point against the electric field. ये बात मैं आपको 5 से 6 दफ़ा बता चुकी हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दो पॉइंट्स में इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन जो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में किया जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैथमेटिकल क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर। पहले हमने ए से बी लिया था, अब हम डिस्टेंसेस देखते हैं क्या है, ए आर ए और आर बी, तो हमने आर ए से आर बी तक ले लिया। ठीक है, अब आप देखें हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या है। अगर आपको याद हो, हमने S1 के सिलेबस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी तो हमने कैपिटल ई की वैल्यू भी फाइंड की थी, विच वॉज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ये आपको पता है यूनिट वेक्टर है सिर्फ कि डिस्टेंस की वो जो डिस्प्लेसमेंट आर ले रहे हैं हम उसकी डायरेक्शन क्या है, इसलिए सो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। पुट दिस वैल्यू इन this equation. Okay, we will get VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल RA टू RB, और ये E की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखते तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, डॉट DR, सो VB माइनस VA। अब अगर आप देखें यहाँ पे Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, चार्ज है, हम चार्ज को चेंज नहीं कर रहे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही कांस्टेंट टर्म्स है। एक्चुअली वेरी क्या हो रहा है, दिस डिस्टेंस, पहले पॉइंट जहाँ पे पड़ा था चार्ज पड़ा था वो था आर ए डिस्टेंस, फिर हम उसको मूव करवाया है डिस्टेंस ये वाला, और वो कहाँ पे आ गया है, डिस्टेंस आर बी पे। ओके, सो व्हाट एक्चुअली इज वेरिंग, सो डिस्टेंस आर इज वेरिंग हेयर, सो वी विल इंटीग्रेट दिस आर बिकॉज दिस इज वेरिएबल। ठीक है, सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए टू आर बी इंटू डी आर ओवर आर स्क्वायर। ये यहाँ पे उसने बता दिया कि एज आर कैप यूनिट वेक्टर था तो ये डायरेक्शन ही बता रहा था, और हमें पता था जो हमने शुरू अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी, वो रेडियली आउटवर्ड थी। ठीक है, हम वैसे ही बता के उस आर कैप से जान छुड़वा रहे हैं। सो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर। आपको पता है मैथ्स आता है, डेरिवेशन आती है, इंटीग्रेशन आती है। 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/r। ठीक है, -1/r अपर लिमिट टू अपर लिमिट और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, ये हमें पुट करना होती है। ये माइनस और ये माइनस देखें प्लस हो गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ठीक है, अब हम जब लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RB माइनस 1/RA। So this is the expression for the potential difference between 2 points A and B. Okay, पहले देखें, सबसे पहले जो हमने देखा था वो देखा था पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, उसका एक एक्सप्रेशन फाइंड किया हमने। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है एट अ पॉइंट। अब हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेशन निकाला था फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज़ दिस वन। अगर सपोज मैं ये एक्सप्रेशन तो है आपके पास, और आपको पता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है कि हमें सिर्फ एक पॉइंट पे देखना होता है और दूसरा पॉइंट हम इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन है आपके पास और आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, हम ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे एज्यूम करेंगे और वहाँ पे वी ए डेफिनेटली फील्ड इफेक्ट जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा हमारा। सो 1/r ए डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो। हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये आ जाएगा। कैसे? ओके, नेक्स्ट देखें, हेडिंग बी है एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल करने का एक्सप्रेशन फाइंड करें। पहले हमने किया था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हम कर रहे हैं फॉर absolute electrical potential. Okay, the electrical potential at any point is the amount of work done per unit charge in moving a unit positive test charge from infinity to that point. अब क्या है, जब सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ़ द पॉइंट ए इज़ एट इन्फिनिटी देन ए हमने इन्फिनिटी भी लिया, उस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। आर ए डिस्टेंस है वो हम इन्फिनिटी ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चूँकि हम एब्सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं, वी ए हमारा ज़ीरो हो जाएगा। सो वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए था। आर ए हमने क्या किया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लिया। सो वन ओवर इन्फिनिटी इज ज़ीरो इम्प्लाइज वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी। और अगर हम इसको जनरल लिखना हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हम क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। So this is the electrical potential at a point due to a point charge. This is for at a point due to point charge. Okay students, so this was all about your first lecture in which we studied what is electrical potential, what is potential difference, and what is the work done against electrical field, and what is the force which we exert on the charge in moving it from point 1 to other point against the electrical field. Then we find the potential difference, absolute potential difference at a point, and then we find the expressions for electrical potential due to point charge, and after that we find we derived expression for the absolute electrical potential at a point due to point charge. Students, okay, this was all about your first online lecture of applied physics. Now this is the end of the first lecture, and in the next lecture we will see numerical and others topic as well. Thank you.